Everyone, everyone, can you hear me? Am I audible to everyone? Yes. Thank you. Yes, please. Thank you very much. Okay, so we'll start our session, our webinar. So welcome everyone to this very insightful session on Islamic capital market, introduction, challenges, and opportunities. I'm Madiha Rubab, and today I'm honored to be your moderator for this webinar. We are very delighted to host this session where we will explore the fundamentals, challenges, and emerging opportunities in the Islamic capital market. With the growing demands for Sharia-compliant financial instruments, it is really crucial to understand the market dynamics and future potential. For this, we are privileged to have with us our esteemed speaker, Mr. Javed Haider Hashmi. He is serving as Chief Market Operations Officer at Pakistan Stock Exchange. He brings with him nearly 3 decades of experience in capital markets, banking services, and risk management. Before I begin, a quick note for all the participants. Please ensure your microphones remain muted during the session. And if you have any queries, do write it in the chat box, and it will be addressed later on during the Q&A session at the end. Now, let me introduce our distinguished guest. Mr. Javed Haider Hashmi has an extensive career spanning nearly 30 years in capital markets and banking services. His expertise covers financial market operations, business support, and risk management advisory services. Before joining Pakistan Stock Exchange in 2018, he spent over 12 years with Emirates NBD Group UAE, where he served in multiple leadership roles. He was also part of the Group Operational Risk Control Unit, providing risk advisory to Treasury and capital markets. In addition to his role at PSX, he serves as a nominee director on the board of IFME and represents PSX in key capital market development forums. Academically, he holds an MBA in finance and MS in management, and is also an associate of the Chartered Institute for Securities and Investment, CISI UK. Mr. Javed Hashmi, your floor, your virtual floor is over to you. Thank you very much, Mr. Bob, for this detailed introduction. It's indeed a privilege and an honor for me to talk to such an esteemed audience. I'd like to thank my brother Qibla Mazhar Abbas साहब जिन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया, और मोहम्मद अब्बास साहब जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब का, उन दोनों का और आप सब का वक्त निकालने के लिए। मुझे ये हम इस सेशन की जो मीडियम है, लैंग्वेज हम मिक्स रखेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा बात उर्दू ज़बान में करें, जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मुझे अंग्रेजी ज़ुबान ही में कहना पड़ेंगे, तो मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा उसके ऊपर। आपने दारुफ के अंदर ये भी कहा कि आज हम इस सेशन के अंदर जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं एंड द अपॉर्चुनिटीज इन द कैपिटल मार्केट, उसके ऊपर भी बात करेंगे, एंड दैट इज एक्चुअली द मोस्ट एक्साइटिंग एरिया फॉर मी टुडे। मेरी एक्सपेक्टेशन इस सेशन से दो हैं। वन, कि मुझे आपके साथ कुछ बातें शेयर करना है कि हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग तो काफ़ी मकबूल और मारूफ और मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है। इस्लामिक कैपिटल मार्केट निस्बतन नई बात है बहुत से लोगों के लिए, और उसकी एक वजह ये भी है कि कैपिटल मार्केट ओवरऑल पाकिस्तान में हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत कम हिस्सा ऐसा है जो डायरेक्टली
engage है with the stock market of the country, the only stock exchange in Pakistan. तो थोड़ा सा हम इसको, if we divide it into 3 to 4 parts, so we'll talk about, at times I can understand हमारे साथ इस in audience में कुछ लोग जो शुरू से जानना चाहते हैं एलिमेंट्री चीजें, वो भी थोड़ा सा कवर किया जाएगा। लेकिन कुछ जो हैं बहुत सीनियर शुरका भी हैं जिनसे मुझे गाइडेंस भी चाहिए होगी, क्योंकि ये एक सफर ऐसा है जिसमें हम सब मिलके ही कहीं आगे पहुंच सकते हैं। मकसद बहुत बड़ा है, किसी एक का इसमें किसी एक के बस का नहीं है। वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू गेट इट टू अ मार्क where we really want it to। पहले सेशन में हम कैपिटल मार्केट की थोड़ी सी फंडामेंटल और उसकी टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद क्विक सा टच अपॉन ऑन द challenges, but more importantly, I will spend more time on the emerging opportunities and the work done so far in Pakistan through the capital market ecosystem. और जब हम ecosystem की बात करते हैं, because all scholars and the students today of Sharia, they are working on introducing alternatives of the conventional instruments currently available and popular in the market। So उनके लिए ये जरूरी है कि जो existing ecosystem है इसकी भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम इसी सेशन में जब उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि फर्ज कीजिए नेशनल क्लियरिंग का क्या रोल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी क्या करती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या किरदार है इस पूरे इकोसिस्टम में, और इसके बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे ब्रोकर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं। एसेट मैनेजमेंट से भी आप लोग काफी मुतारिफ होंगे। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, एंड इन द एंड आई वुड लीव यू with few thoughts. The thoughts we've been working on, we've been deliberating upon. We have esteemed group of Sharia scholars who we call the focus group, who've been advising us on various aspects कि हम जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसको कुल्ली तौर पे शरिया कंप्लायंट प्रिंसिपल्स के मुताबिक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक प्रेजेंटेशन डेक है, आपकी इजाज़त से मैं उसको रन कर लेता हूँ और हम क्विकली उसको आगे बढ़ेंगे। आपके कोई भी सवाल हो प्लीज़ चैट में लिख दीजिएगा। अगर 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 रोकना मकसूद हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड, और वरना यह है कि हम एंड के ऊपर मजीद उस पर थोड़ा तफसील से बात कर लें। जिन सवालों के जवाब मेरे पास होंगे मैं हाजिर हूँ, जो मेरे पास नहीं होंगे मेरा वादा है कि मैं कोशिश करके आपके लिए उनके जवाबात भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत से मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। मोहतरमा, जब मेरी स्क्रीन आपके यहाँ विजिबल हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। जी, क्या ये स्क्रीन मेरी विजिबल है जी? ग्रेट, इट सीम्स के स्क्रीन जो है वो विजिबल है। तो मैं इस assumption के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। मेरी कॉलीग निकिता कुमारी भी मेरे साथ हैं इस सेशन में। मेरे एक और कॉलीग शाहजेब भी हैं। अम, तो वो अगर मुझे इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और एनीथिंग दे कैन आल्सो हेल्प अस इन। किसी भी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए सरमाए की जरूरत होती है जिसको हम कैपिटल कहते हैं।
कैपिटल को की फॉर्मेशन के लिए या उसके हुसूल के लिए जो बहुत मारूफ चैनल्स हैं उनसे तो हमारा तारुफ है। हम जाहिर है सबसे पहले अपने कारोबार के लिए अपनी सेविंग देखते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कंसल्ट करते हैं। कारोबार को जैसे जैसे वसी करना मकसूद होता है, हमें सरमाए की जरूरत पड़ती है। इसके लिए फिर हमारे यहाँ बैंक्स का एक रिवाज है कि जिसके पास इस्लामिक प्रोडक्ट्स भी हैं, कन्वेंशनल भी हैं। हमारा इस वक्त फोकस जो है वो इस्लामिक पे रहेगा। हम काफी जानते हैं इस बारे में कि बैंक से जाके लोन लिया जा सकता है और उससे कारोबार को वसी किया जा सकता है, और उसी कारोबार के जो मुनाफा है उससे उसको वापस पे ऑफ कर दिया जाता है। दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है वो है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आके बिजनेसेस अपने कैपिटल की रेस करने के लिए स्टॉक मार्केट से रुजू करते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जिनको आप अपनी प्रपोजल जो है वो उनसे शेयर करते हैं और एक प्राइस उनसे एक कोट करते हैं, और वो प्राइस अगर आपको समझ में आती है तो आप सरमायाकारी उसमें करते हैं। इसमें भी कारोबार अगर अच्छा करता है तो मुनाफा डिविडेंड की सूरत में वापस इन्वेस्टर को चला जाता है। कारोबार अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके जो, क्योंकि ये जो आप को जो उस कारोबार में जो हिस्सा मिल रहा है उसको शेयर कहते हैं। अगर उस शेयर की कीमत स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ जाती है तो आपके पास न सिर्फ डिविडेंड बल्कि कैपिटल गेन के भी मौके मुयसर होते हैं। यानी अगर एक स्टॉक आपने 10 रुपए में खरीदा और कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स की वजह से उसकी कीमत 12 रुपए हो जाती है, तो दैट 2 रुपए आप मार्केट से भी एनकैश कर सकते हैं by selling those stocks in the secondary market. So we'll quickly touch upon it. So as I was saying, I was mentioning, so the capital market simply connects both the businesses who need the capital and the investors who are out there with the money to invest. कैपिटल मार्केट की टाइप्स हमने क्विकली थोड़ा सा देखा। एक है डेट मार्केट, जो कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक कर्ज की एक शक्ल है। इट इज अ लोन जो कि कंपनी या बिजनेस इन्वेस्टर से लेता है। इसकी जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल उस कर्ज के वसूल पे ही तयन हो जाता है उसका। और कारोबार अच्छा करे या बुरा करे, नफा करे या ना करे, वो एक खास अ, जो इंटरेस्ट है, सूद है, प्रॉफिट रेट है, वो उसको वापस करना ही करना है। सो डेट इज essentially a part of you are a lender to the business, whereas equity साइड के ऊपर जब आप कैपिटल रेज करता है कोई भी बिजनेस, तो बेसिकली आपको एक ओनरशिप ऑफर करता है। सो इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप इन द बिजनेस। और जैसे मैंने बताया कि कारोबार के मुनाफा बख्श होने पे मुनहसर है कि आप डिविडेंड आपको मिलता है, कारोबार के नफे में से कुछ हिस्सा आपको मिलता है। और अगर ऐसा ना हो, कारोबार उस तरह से ना पनप पाए, तो डिविडेंड्स का मिलना गारंटीड नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि डेट मार्केट लेस रिस्की होती है, डिफॉल्ट के चांसेस, नुकसान के चांसेस निस्बतन कम होते हैं, जबकि एक्विटी मार्केट इज अ रिस्की बिजनेस, इज अ रिस्की एसेट क्लास। और जो हम में से फाइनेंस के तालिब इल्म हैं उन्हें पता ही है कि जितना रिस्क उसी हिसाब से रिवॉर्ड। सो द हायर रिस्क लीड्स टू हायर गेन्स एंड वाइस वर्सा। सो दैट इज द इन्वेस्टर्स चॉइस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके पास दोनों मार्केट्स मौजूद हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज। सबको अंदाजा है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स का इजरा होता है और उनकी खरीदो फरोख्त होती है। डेट सिक्योरिटीज जो हमारी हैं वो भी हमारे पास उसी तरह से हमारे पास गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे इशू भी होते हैं, ट्रेड भी होते हैं। और इसी तरह से जो भी कॉरपोरेट है वो भी कर्ज जो है वो जारी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, टीएफसीज इन द कन्वेंशनल स्पेस एंड सुकूक इन द शरिया स्पेस। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है जिसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे आगे जाके, वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून में तब्दीली के बाद ये मुमकिन बना दिया कि कैपिटल मार्केट ऑफ पाकिस्तान कैन आल्सो रेज फंड्स फॉर द गवर्नमेंट।
for their projects and for the financing needs of the government. ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1 से 1.5 साल पुरानी बात है ये, या एग्जैक्टली दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड्स। सो ये अब इनका इजरा भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, हम इसमें मजीद बात करेंगे। अब ये मार्केट्स फर्दर, either it is a debt security or it's an equity security. These are divided into two, as I was saying. कि first level is the initial public offering, जहाँ पे businesses आके एक प्रपोजल देते हैं और शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स उसके इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उस कारोबार का एक खास हिस्सा उनको दे दिया जाता है, जिसको शेयर्स किया कहा जाता है। जब ये शेयर्स, और इसी तरह से बॉन्ड्स या सुकूक के साथ भी ऐसे ही होता है, और जब ये दोनों सिक्योरिटीज इशू हो जाती हैं एक दफा, इसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। वंस ये इनका इजरा हो जाता है तो फिर ये सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं मजीद खरीदो फरोख्त के लिए। यानी यूं कहिए कि आपने एक एक शेयर जो है वो 10 रुपए पे बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 10 रुपए के एवज आपको वो शेयर मिला। उसके बाद अगर आपको उसको आपको जरूरत है पैसे की और उस वक्त आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो ये आप सेकेंडरी मार्केट में किसी भी वक्त जाके ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ऑफ कोर्स आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से आप अपने पैसे खुला सकते हैं वहां से। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। थोड़ा सा मैं टच अपॉन करूंगा द कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान। मिडिल में आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये रेगुलेट हो कर रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विच इज द एपिक्स रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट इन द कंट्री। हमारे दाएं और बाएं जानिब आप देख रहे हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी और नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। नेशनल क्लियरिंग कंपनी is responsible for clearing and settlement of all transactions or trades which are done at the stock exchange. सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, क्योंकि अब शेयर्स जो हैं वो पेपर्स की फॉर्म में मौजूद नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, और उसकी जो डिपॉजिटरी है उस वो सर्विसेज सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी मुहैया करती है। तो वो दे इंश्योर द सेफ कस्टडी ऑफ योर शेयर्स। कैपिटल मार्केट के अंदर दो ये हैं इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस, और जो इंटरमीडिएटरीज जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमारे लाइसेंस ब्रोकर्स हैं, जिनकी तादाद इस वक्त 190 से जायद है। आपको अगर एक्विटी में इन्वेस्ट करना है या सुकूक में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ आवर ब्रोकर्स, और वो अपना अकाउंट खोल के वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिनको एएमसी लिखा गया है यहाँ पे, ये बहुत सारी अवेलेबल हैं। इस वक्त 22 के करीब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है मौजूद हैं, और आखिरी आदाद शुमार के मुताबिक 15 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको ये मैनेज करते हैं। आप भी, और इसमें आपको पता है कि बहुत सारे इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट फंड्स जो हैं बहुत मकबूल हैं और उनमें काफी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। सो देर आर टू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, इन द कैपिटल मार्केट, और रादर टू चैनल्स टू रीच टू द कैपिटल मार्केट through either of these two intermediaries. If you want to be an active investor, go to a broker, open an account, start investing. And if you want to stay passive and you want a fund manager to manage your money based on जो भी investment objectives हैं, तो then you can approach an asset management company, find out their offerings, and then you can take part in this investing affair. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 530 कंपनीज लिस्टेड हैं, और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होनी चाहिए कि इनमें से 50% से ज्यादा कंपनीज जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं। यानी 271 कंपनीज, 530 टोटल कंपनीज में से 271 कंपनीज जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं। आपका सवाल होगा कि ये शरिया कंप्लायंस कौन था, इसको डिटरमिन करता है। तो बिल्कुल इसका भी जवाब है कि हमारे रूल्स के मुताबिक हमारा जो फोकस ग्रुप है, हमारे जो शरिया एडवाइजर हैं, उन्होंने कुछ इसका तयन किया हुआ है, और हम मीज़ान बैंक के साथ मिलकर इसको रिव्यू करते हैं और इसको पब्लिश करते हैं।
ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा है, यानी 14,494 अरब रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो 55% से जायद मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जो है वो शरिया कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स पे का मजमुआ है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो हमें पता है ये थोड़ी कम है, इसकी मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा हटके है इससे। गवर्नमेंट का डेट हमने इस वक्त तक काफी रेज कर लिया है, 8 अरब डॉलर के करीब है। मैंने बताया कि इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द सेकेंड लास्ट बिट, वेयर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू, यानी रोजाना की बुनियाद पे जो ट्रेडेड वैल्यू होती है, उसमें से 70% ऐसा वॉल्यूम है जो उन कंपनीज में ट्रेड होता है जो शेयर कंप्लायंट है। Now, along with introduction of the market, I'm actually highlighting the opportunities exist at the moment. ठीक है जी। हमें कुछ अवार्ड भी लेने का शर्फ हासिल हुआ, जीफा अवार्ड, जो कि एक इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड है। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन अ रो 3 साल इस अवार्ड को हासिल करने में कामयाब हुई। सो ये एक छोटा सा तारुफ हो गया। अब इसके बाद हम बहुत कुछ कर तो चुके हैं और अभी आपको बताएंगे कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन चैलेंज यही है कि हमारे जो की इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंस के एरिया में, उसमें 3 चीजें जो वाज़ेह हैं और आप लोग मुझसे ज्यादा इस बारे में जानते हैं। रिबा, द इंटरेस्ट, सो प्रोहिबिशन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स। दूसरा, जो आपका एक्सेसिव अनसर्टेनिटी है, that is not permissible. If a transaction carries that element, it departs from the Sharia compliant territory. तीसरा, कोई भी ऐसा कारोबार जो जिसकी हैत जो है वो हलाल नहीं है, वो भी प्रोहिबिटेड है। So these are the challenges, and to me the biggest challenge is to depart from this traditional structure, because ये एक सदी से जायद से ये हम इसके अंदर ये ऐसा हमारे फैब्रिक के अंदर निट हो चुका हुआ है कि इससे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन कदरे मुश्किल जरूर है। और हम इसके ऊपर तनदेही से काम कर रहे हैं। सो दीज आर प्राइमरीली द चैलेंजेस जो वी कम अक्रॉस, and now we will spend more time on how are we tackling these key issues. इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक एक जर्नी नजर आ रही है। दैट इज द जर्नी ऑफ कैपिटल मार्केट इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू द शरिया प्रेफरेंस। तो ये हमारी एफर्ट बहुत नई नहीं है। आप देख सकते हैं ये सफर 2008 में जब इसका आगाज हुआ, जब हमने अपना पहला इंडेक्स KMI 30 इंडेक्स लॉन्च किया, बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमने अपना पहला जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उस वो लॉन्च हुआ 2015 में। KMI KMI stands for कराची KSC मीज़ान इंडेक्स। सो मीज़ान बैंक के साथ कोलैबोरेट करके एक और इंडेक्स बनाया गया जिसमें ऑल शेयर इंडेक्स, यानी ऑल शरिया कंप्लायंट शेयर्स मेक पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स। अब इंडेक्स से फायदा क्या होता है कि उस इंडेक्स की मूवमेंट से आपको अंदाजा होता है कि इसके अंदर मौजूद शेयर्स की मूवमेंट जो है वो क्या है। सो आपको एक ट्रैक्शन, एक व्यू मिलता है उससे। 2018 में SECP जो हमारा एपेक्स रेगुलेटर है एंड हैज बीन वेरी एक्टिव इन इम्प्लीमेंटिंग द शरिया कंप्लायंट फ्रेमवर्क एट द कैपिटल मार्केट। 2018 में गवर्नेंस के रेगुलेशंस इशू हुए। 2019 में हमने पाकिस्तान एनर्जी सुकूक के नाम से एक बहुत बड़ा इशू किया पावर होल्डिंग लिमिटेड के लिए। मुराबाहा शेयर फाइनेंसिंग, जो एक मार्जिन ट्रेडिंग जो हमारी ट्रेडिशनल स्पेस के अंदर है उसका मुतबादिल है मुराबाहा शेयर फाइनेंसिंग। मुराबाहा के स्ट्रक्चर के ऊपर ये शेयर्स की फाइनेंसिंग की सहूलत मुहैया करता है, नेशनल क्लियरिंग इसको ऑफर करता है। और ये बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि मुतबादिल है मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम का। मार्जिन ट्रेडिंग आपको पता है कि जहाँ पे
फुली कैश के साथ एक चीज नहीं खरीदी जाती बल्कि उसको लोन के ऊपर खरीदा जाता है। हमारी इस वक्त आपकी कैपिटल मार्केट में शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ्स भी मौजूद हैं। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को कहते हैं। ये भी कुछ शेयर्स का एक मजमुआ होता है, एक बास्केट की मानंद होता है और एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। तो आपको अगर इसमें इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। So it's another way of investing and taking exposure in a variety of stocks by doing a single trade. Very diversified risk composition आपको ये available करता है। 2019 में की सक्सेस के बाद पाकिस्तान एनर्जी सुकूक का दूसरा इशू किया गया 2020 में। फिर जैसे मैंने बताया कि 21, 22 और 23 में हमें ये अवार्ड भी मिल गया फॉर आवर एफर्ट्स। वी आर वेरी हैप्पी। उसके बाद हमने रीट इशू करने का एक सिलसिला शुरू किया। आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट 2024 में, चूंकि इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जरूरी था कि तमाम वो जो शरिया प्रिंसिपल्स हैं उनकी एक स्टैंडर्डाइजेशन या हार्मोनाइजेशन वाज इम्पोर्टेंट। सो पीएसएक्स के अंदर एक शरिया फोकस ग्रुप की तश्कील दी गई। अब हमारे पास कोई एक एडवाइजर नहीं बल्कि एक एडवाइजर्स का ग्रुप है जो शरिया फोकस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और मेरे मोहतरम किबला मजहर अब्बास साहब भी की रिप्रेजेंटेशन भी है उस ग्रुप के अंदर। इनसे हम इस्तेफादा हासिल करते रहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज। देखिए जो भी ग्रीन बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उन इस्लामिक प्रोडक्ट्स को, शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स को, उन अपॉर्चुनिटीज को जो इस वक्त आपकी कैपिटल मार्केट में मौजूद है। आप शरिया कंप्लायंट एक्विटीज की बात हम कर चुके। 271 से कंपनीज जो हैं वो शरिया कंप्लायंट हैं। हमने सुकूक का जिक्र किया कि इस कॉर्पोरेट सुकूक जो हैं वो भी इशू हो रहे हैं यहाँ से। हमने अभी आखिर में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सुकूक की बात करेंगे क्योंकि वहां से मैं थोड़ा सा आपको मजीद इस नई डेवलपमेंट और नई अपॉर्चुनिटी के बारे में मजीद बात करना चाहूंगा। हमने इस्लामिक इंडस्ट्रीज की बात कर ली कि MI30 की MI ऑल शेयर ETF की अगर आप स्पेस देखें तो उसके अंदर हमारे पास मीजान का एक फंड है, एक हमारे पास MI30। दीज आर द इंडस्ट्रीज। मीजान का जो ETF है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ETFs जो ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी प्रोड्यूस कर चुका है ओवर द पास्ट 1.5 ईयर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सुकूक जैसे मैंने बताया कि पहले तो सिर्फ कॉरपोरेट्स या बिजनेसेस जो हैं वो सुकूक इशू करते थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट के थ्रू। अब गवर्नमेंट भी अपनी फाइनेंसिंग के लिए कैपिटल मार्केट से रुजू करती है और इसमें जो स्ट्रक्चर अभी तक राइज है वो है इजारा का। इजारा सुकूक इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन। और इसकी जैसे हमने शुरू में बात की प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सो बोथ द मार्केट्स आर अवेलेबल ओनली एट योर ओन स्टॉक एक्सचेंज। इससे पहले ये सिलसिला स्टेट बैंक के यहाँ से होता था जैसे आज भी टी बिल्स, PIBs, ये स्टेट बैंक के यहाँ से इनका इजरा होता है। लेकिन इजारा सुकूक अब सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही से इशू होते हैं। ठीक है जी। ये एक जो मैंने पहले जिक्र किया था कि ये एक अमेंडमेंट के बाद ये मुमकिन हुआ कि कैपिटल मार्केट भी इस फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट को। इसके लिए एक इन हाउस ऑक्शन सिस्टम डिजाइन किया गया। पहली दफा ऐसा हुआ कि हमने एक 1 ईयर का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ये बिल्कुल उस तरह से अगर आप समझने की गर्ज से पूछें तो ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जैसे 12 महीने का एक डिस्काउंट पे इशू हुआ हुआ कोई और गवर्नमेंट पेपर हो सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक है। ये भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे यानी अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू होता है और फेस वैल्यू के ऊपर मेच्योर हो जाता है। 1 साल की मियाद होती है इसकी। इसके अलावा फिर बाद में हमने इसके मल्टीपल वेरिएंट्स जो हैं इशू किए जिसमें फिक्स रेट रेंटल है, जिसमें वेरिएबल रेट रेंटल है और इनके डिफरेंट टेनर्स हैं 3 साल, 5 साल और 10 साल तक की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी फराहम करती हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स।
आपकी कैपिटल मार्केट से। इसमें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया था कि 190 से ज्यादा ब्रोकर्स ऐसे हैं जो लाइसेंस्ड हैं। आप उनमें से किसी के साथ भी राब्ता कर सकते हैं और अपना अकाउंट खोल के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन की फ्रीक्वेंसी शुरू में ये एक दफा, बीच में एक महीने में 2 दफा भी होती रही, और आमतौर पे ये महीने में एक दफा ये ऑप्शन हुआ करती है। लास्ट वन 4 फरवरी को हुई थी, और इंशाल्लाह अब हम मार्च में रमजान मुबारक में ऑक्शन और मजीद मजीद कंडक्ट करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। हमने अभी आज ही 2 रोज पहले एक कैंपेन भी लॉन्च की है, जिसमें इस हुकूक के बारे में काफी बेसिक मालूमात जो है वो उसके अंदर हमने कोशिश की है। क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेशन है वो इतनी छोटी है कि आप, पहले ये था कि इन सुकूक में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ हाई नेटवर्थ या बहुत पैसे वाले लोग ही इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेशन है वो शायद 1 मिलियन से कम 1 मिलियन थी। हमारे पास ये जो सुकूक है इसकी जो कम से कम डिनोमिनेशन है वो 5,000 पाकिस्तानी रुपीस, which I think anybody can, even a student can take out of his or her, pocket money. So, and that offers you a Sharia compliant, stable return, which is backed by the government of Pakistan, and it is issued only locally in the denomination of Pakistani rupee. जी यस की ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक 18 ऑप्शंस हम कर चुके हैं। लास्ट वन ऑन द 4 फरवरी। और इसके अंदर जो मैंने 3 आपको इसके वेरिएंट्स बताए, इस वक्त तक 2.25 ट्रिलियन रुपए का ये इशू हो चुका हुआ है, which comes to over 8 billion in the US dollar terms. So that is a new opportunity opened up for the investing public. आप ये देख सकते हैं इनका इजरा किस तरह से होता है। हमने लास्ट था वो nearly 100 billion, but we had also done an auction of over 350 billion in a single auction, and it is done so transparently and so efficiently कि कोई भी आम इन्वेस्टर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जब ये प्राइमरी मार्केट में इशू हो जाता है तो देन इट बिकम्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कोई भी बिजनेस जो है वो शेयर का इजरा करता है पहली दफा एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, और उसके बाद वो इन्वेस्टर अगर उसको बेचना चाहते हैं, या कुछ नए इन्वेस्टर जो कि पहले बिजनेस से नहीं ले सके लेकिन आप खरीदना चाहते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इसी तरह से ये सुकूक भी सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होता है, और अल्लाह के फजल से काफी एक्टिवली ट्रेड भी हो रहा है। सिर्फ इसमें और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो ये बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस महीने फरवरी में 55 अरब रुपए से ज्यादा की इसमें ट्रेडिंग हो चुकी हुई है, विच नॉट ओनली शोज इट्स not only shows the investors' confidence, but the potential this investment opportunity has. And that helps in the efficient price discovery जिसको हम कहते हैं। When there is an market का तो फायदा ही ये होता है, it provides the efficiency both in terms of the transaction itself and the discovery of the price, because a marketplace is nothing but a platform where buyers and sellers meet each other, negotiate a price where they are able to and willing to trade at that price. So the more investors to the marketplace, the more efficient the price it generates or it disseminates in the end। ट्रेडिंग वॉल्यूम का एक और चार्ट। तो ये था हमारा अभी तक का। हमने बात की कि कैपिटल मार्केट की बेसिक्स क्या हैं, पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह का है। फिर हमने ये देखा कि कुछ की challenges हैं। Challenges in the sense of challenges is basically the departure
from our conventional or traditional way of doing finance. And then we spend more time on the opportunities available in the current space. Now, that's where I need your further engagement in this session or afterwards कि हमें जो अब हमारा वे फॉरवर्ड है उसमें हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मैं एक एक करके उसमें थोड़ी सी बात करता हूँ, आपकी आपकी शिरकत चाहूंगा। T+2 सेटलमेंट आपको पता है, अ, या जिनको नहीं पता उनके लिए, जो भी शेयर आप ट्रेड करते हैं एक दिन, उसकी सेटलमेंट 2 रोज बाद होती है। इसको हम T+2 कहते हैं। बावजूद इसके कि 70% से ज्यादा जो ट्रेडेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में है, सेटलमेंट के लिए 2 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि शरिया प्रिंसिपल तो ये है कि यू कैन नॉट सेल एनीथिंग विदाउट टेकिंग द पोजेशन। यू आर एन ओनर इन पोजेशन, सो यू ओन एंड हैव द पोजेशन। सो उसके लिए आपको बेचने के लिए दिक्कत है। आप जिसको एक दिन में अगर आप खरीदते हैं तो आपको 2 रोज बाद वो डिलीवरी या वो शेयर्स जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, जब भी आप उनको बेच सकते हैं। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के नाम से। हमारे शरिया स्कॉलर्स फोकस ग्रुप के थ्रू हमें इसके ऊपर काफी रहनुमाई कर चुके हैं, कुछ फतावा भी दे चुके हैं। तो उससे इंशाल्लाह अजीज हम इसको तो बिल्कुल ओवरकम कमोबेश कर चुके हैं। दूसरा जो एलिमेंट है वो भी इसी ओनरशिप से जुड़ा हुआ है, और वो ये कहता है कि आप कोई भी चीज ऐसी बेच नहीं सकते जिसको आप ओन नहीं करते। सो ये है, इसको हमारी जबान में ब्लैंक सेल कहते हैं या शॉर्ट सेल कहते हैं, कि जो चीज आप बेच रहे हैं वो आपके पास नहीं मौजूद। क्योंकि इसके अंदर स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, आप एक चीज को इसीलिए बेच रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में उसको कम कीमत के ऊपर खरीद सकें। तो चूंकि इसमें स्पेकुलेशन का अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है, तो ये हलाल नहीं रहती। हमने सिस्टम के सपोर्ट के साथ इसमें एक ऐसा चेक हम बिल्ड कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा शेयर जो एक इन्वेस्टर की पोजीशन में नहीं है वो उसको ना बेच सके। सो दैट्स हाउ वी वांट टू कर्ब द वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस control to avoid any short selling or blank selling in the capital markets. Another thing is the awareness and the investor education. Because जैसे मैंने बताया कि हमारे मुल्क की बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो स्टॉक मार्केट से कुल्ली तौर पे मुतारिफ है, और ये बहुत कम नंबर है इन्वेस्टर्स का जो हमारी मार्केट में इस वक्त पार्टिसिपेट करते हैं। और आप अंदाजा कीजिए, मार्केट ने 84,000 का रिटर्न दिया एक साल में, पिछले साल। लेकिन इससे मुस्तफीद होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी, क्योंकि यानी in a population of 240 million people, there are only nearly 400,000 people who are no 400,000 investors directly investing in the stock market. हाँ, 6 से 7 लाख के करीब ऐसे हैं जो एसेट मैनेजमेंट के थ्रू भी करते हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन which is connected with the capital market. So that shows the limited awareness and the education part. So आप हम भी इसमें लगे हुए हैं, आप भी इसमें हमारे आई एम थैंकफुल टू सादिक इंस्टीट्यूट, बहुत नोबल काम करते हैं इस सिलसिले में। तो जैसे जैसे ये आगाही बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स जो हैं वो मजीद इस मार्केट के से मुतारिफ भी हो जाएंगे, और वो इसमें पार्टिसिपेट शामिल भी हो जाएंगे, और इसके जो अफादियत है उससे भी मुस्तफीद होना शुरू हो जाएंगे। इस्लामिक इक्विटी मार्केट में स्टिल हमारा ख्याल है कि और कंपनीज लिस्ट होनी चाहिए, और कंपनीज मतलब कंपनीज की तादाद इसके अंदर मजीद बढ़नी चाहिए, ताकि इसके अंदर वो डेप्थ क्रिएट हो, वो ब्रेड्थ क्रिएट हो, जिससे आपको और अपॉर्चुनिटीज मिले। सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, यानी कर्ज के ऊपर सिक्योरिटीज का हुसूल और उनका लेंड करना, ये एक
चूंकि इंटरेस्ट जो है वो forbidden है, रिबा is forbidden, so we are working on finding ways to implement the stock lending and borrowing in a Sharia compliant manner. I'm not sure if I have comments or questions in the chat. So, madam, if you allow me, I'll just quickly check if I can have something to help in the chat, or you can help me out with that, please. I think few of my colleagues have been very active. Thank you very much, Shazib, Nikita. I think you were already answering few of the questions, but we are open to any more questions, please. This presentation uh, will surely be shared with Madam Rubab and Brother Abbas. वो आपके साथ इसको share कर लेंगे. I would also try if we can place it on our website in the GDS page. Now, before moving forward, if I may request you to please scan this and that will mark your attendance for our record. थोड़ी जहमत होगी आपको, लेकिन अगर आप इसको स्कैन कर दें तो मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज. I think the scan is probably not functioning properly, as I could understand from the chat. Let me just check. Give me a second, please. Shazib or Nikita, can you please check if it is working with you? I'm sorry. Yeah, just a second, I'm checking. Thank you. Okay, thank you, Mithil. So I think it's working for some. Yeah, thank you so much for the confirmation. आपकी इजाजत हो तो हम तो आगे बढ़ते हैं. जी, Mr. Bob, anything from your side so far? I hope I'm audible. I'm sorry. Shazib, am I audible? Ji, sir, you are. Oh, thank you very much. Glad to know that. So, anyways, if there's nothing, Sir, I believe there's a question from Mithil in the comment section regarding intraday trading. yes, that's what Mithil. That's let me just have a sip first. It's okay. Hmm. That's where I said, because it is T plus 2, so you need to wait for 2 days, and that applies to the intraday trading in the similar manner. Because if you buy something, it doesn't reach your account instantly. So that means you need to wait for it to land into your account for it to resell.
सो इंट्राडे ट्रेडिंग का भी वही बात है पोजीशन वाली चीज, लेकिन जैसे मैं जैसे एज आई सेड, there is this concept of constructive possession, because any transaction which takes place at stock exchange, recall the initial ecosystem I introduced you to. On one side, you had, well, let me just take you, there are not many slides anyway. So let me just show that ecosystem once quickly. So see, on one side, you have national clearing. National clearing actually plays the role of central counterparty for every transaction happens, occurs at the stock exchange. So CCP guarantees the transaction. So इसके ऊपर बेस करते हुए कि कोई ट्रांजैक्शन फेल नहीं हो सकती, हम ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि उसको कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में समझ लिया जाए, ताकि वो खरीदारी के फौरन बाद ही दोबारा बेचने के लिए अवेलेबल हो सके। अब बस इसके लिए एक मैकेनिज्म जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है वो ये कि इस सूरत में कोई ऐसा स्टॉक न बेचा जा सके जो कि नीदर इट इज इन द कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, नॉर इट इज देयर इन द अकाउंट। सो ऐसा कोई चेक होना चाहिए सिस्टम के अंदर जो इसको अलाउ ना करे। आई होप आई ट्राइड आंसरिंग योर क्वेश्चन। इफ यू अगर क्वेश्चन अभी कोई ऐसा आंसर रह भी जाए या अनअटेंडेड रह भी जाए, तो प्लीज आप हमें जरूर लिखिएगा। info@psx.com.pk पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं। जवाब होगा फौरन देंगे, ना होगा तो अरेंज करके देंगे इंशाल्लाह। Is it allowed in Islam to sell debt invoices to certain companies at discount in order to get paid early? So it is a discounted thing. Brother Ayub, I'm not aware of any such transaction taking place in the stock exchange or in the regulated exchanges. If there is some structure there in the OTC market, if counterparties are doing something with each other, that is a separate thing. But at the exchange, a regulated exchange, there is no such discounting at the moment available. The instrument which I spoke about, that 1 year, which is quite similar to a 12-month paper in the traditional space, that is issued by the government at a price which is lesser than the face, and it gets matured at the face value. The difference between ETF and mutual funds. There are few differences. ETFs are readily available for trading throughout the day. Anybody can come in, exit at any time during the day by doing a selling and buying transaction. For a mutual fund, if you want to subscribe, you go to the mutual fund, to the asset management company. And if you want to redeem, you would again go to the mutual fund, the asset management company, to get it redeemed. Mutual funds are mutual funds. They do work as per the investment policy, the investment strategy. ETFs are they simply mimic an index which is based on the constituents of that ETF. We have detailed literature on this. I would request Shazib or Nikita to share that link also, either here or alongside the presentation later. जिसमें the composition of indices and the basket of ETFs, that is all available. Assalamualaikum, sir. Mithil, the answer to your question is yes. Since we recognize that constructive possession element, yes, it is possible. You don't need to wait for Wednesday for those shares to land into your account, and then you again buy it the day later. So now I would quickly move a little further. We have two participants with hand raised. So if we can, I'm not able to unmute you, my friend. Uh,
Okay, I think Muhammad Ali is on mute. Walaikum Assalam wa rahmatullah. सर आई एम मोहम्मद अली कहा कि शॉर्ट सेलिंग का जो उसके अंदर अभी, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के इस्लाम में तो जो अगर इस्लामिक कैपिटल मार्केट के हवाले से हम बात करें तो वो प्रोहिबिटेड है। तो उस पे क्या फिर इसका फ्यूचर मार्केट पे इसकी क्या वो इफेक्ट आएगा इसका, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में ये एक टूल है शॉर्ट सेलिंग का, तो उस पे क्या काम करेगा ये? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इस वक्त हमारे पास राइट मार्केट है ना, जैसे मैंने बताया कि उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो शरिया से मुतसादिम है। तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आपने जो बात कही वो मनोवन सही है। एक चीज जो आपके पास नहीं है वो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, शरिया के मुनाफी है ये बात। अब आपका सवाल कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भाई इम्पैक्ट तो हमें कुछ अपने तर्ज अमल में तब्दीली लानी पड़ेगी ना जी। एक चीज जो गलत है वो राइज है, उसके सिर्फ इस वजह से कि वो राइज है वो सही तो नहीं हो सकती। वो गलत तो गलत ही रहेगा। अच्छा, अब उसका अब क्या कोई ऑल्टरनेटिव निकलता है, वो एक बात की बहस है। और ये बहस में मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स मौजूद हैं इस इंडस्ट्री में, वो हमें इस पे गाइड करें। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, हम्म, शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड, वेदर इन रेडी हम्म। और इन फ्यूचर्स मार्केट। इट डजंट मेक एनी और डिफरेंस। उस पे सर मेरी एक ये भी सजेशन होगी कि इसमें हमें, क्योंकि सारे ब्रोकर्स के साथ अवेयरनेस भी हमें लानी होगी इन्वेस्टर्स के लिए और ब्रोकर्स के लिए, कि इसमें जैसे अगर शरिया कंप्लाइंट की तरफ हमें जाना है तो उसके लिए हमें फिर जो फ्यूचर मार्केट में काम कर रहे हैं जो भी है, तो उसके लिए हमें साथ मिलके ये अवेयरनेस सेशन भी रखने होंगे जिसमें हमें आगाही देनी होगी कि ये चीज़ प्रोहिबिटेड है इस्लाम 100%, 100%। ये जो में। हमारा रोड मैप है उसके अंदर जी जी। ये सारी चीजें हैं जी शामिल। अभी तो हमने कंसल्टेशन में जाना है, उनसे वो कंसल्ट करना है, उनसे उनकी सिफारिशात लेनी है। और पूरी मार्केट से, पूरी इंडस्ट्री के साथ इस एंगेजमेंट के बाद ही हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़ रहे हैं इनफैक्ट। ये स्टार्ट हो गया था लास्ट ईयर व्हेन द ग्रुप वाज फॉर्म। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। सुनहरी बैंक के नाम से कोई हाथ है? इफ वी कैन हैव देम अनम्यूट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, फारूक है फ्रॉम सुनहरी बैंक। वालेकुम सर सलाम मुझे फर्ज। एक सवाल जो हम अक्सर हम देख रहे हैं, एक्चुअली आई एम फ्रॉम रिक साइड। बैंक्स जितने भी इस्लामिक बैंक्स अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए सकूक इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अब वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द ऑल बैंक्स इन 2027। तो हमारे पास एक एवेन्यू सकूक का ही है। जब तमाम बैंक्स कन्वर्ट होंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए एवेन्यूज देखे जाएंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इतने सकूक उस वक्त मार्केट में अवेलेबल होंगे? आप लोग कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स या इस तरह की चीज़ें, टी बिल्स या जो आपके पास पीआईबीज हैं, इसको ऑल्टरनेटिव या एससीसीपी इस पे कोई काम कर रहा है? या आपकी स्टेट बैंक के साथ कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि इन फ्यूचर जो इस्लामिक बैंक्स के पास जो इन्वेस्टमेंट अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए एवेन्यूज़ क्या होंगे? क्योंकि इजारा सकूक ही है, और सकूक या दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर अपने सकूक इशू करते हैं उसके अलावा तो कोई एवेन्यूज़ नहीं। तो इस हवाले से मैं आपका स्टेटमेंट जानना चाह रहा था। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया फारूक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिकॉज अगर हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी को, पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट को इस्लामिक में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमें हर उस सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए जो आने वाले वक्त में हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इजारा स्ट्रक्चर जो है ये टेंजिबल एसेट्स के ऊपर बेस करता है। तो आपका सवाल ये भी हो सकता है कि आज जितने इशू हुए हुए हैं, गवर्नमेंट के बिल्स इशू हुए हुए हैं या बॉन्ड्स इशू हुए हुए हैं, क्या इतने एसेट्स मुहैया किए जाएंगे ताकि उनके ऊपर इजारा स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और इसको कन्वर्ट किया जाए? देखिए, इसका आगाज तो हो चुका है। जैसे मैंने बताया, ये टोटल कोई सुकूक की मार्केट 6 से 7 ट्रिलियन की है, जिसमें से तकरीबन 2.25 ट्रिलियन यानी 2.25 ट्रिलियन PKR इज ऑलरेडी in the capital market. And we have a very ambitious plan. Not we, actually the issuer, who is the Ministry of Finance, the Debt Management Office.
उनका वेरी एम्बिशियस प्लान टू कन्वर्ट, जैसे जैसे वहां से मेच्योर हो रहे हैं, जैसे जैसे एसेट्स रिलीज हो रहे हैं, उसके ऊपर इजारा स्ट्रक्चर बना के यहाँ से इशू हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा नई नई चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है एसेट लाइट स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर न सिर्फ टेंजिबल बल्कि इंटेंजिबल्स को भी कंसिडर किया जा सकता है एज एन एसेट। ठीक है। अब उसके ऊपर इस वक्त शरिया स्कॉलर्स काम कर रहे हैं और इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें निकालना होगा। अच्छा, इजारा के अलावा मुराबाहा भी एक स्ट्रक्चर है। सिर्फ फर्क ये होता है कि इजारा इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। इजारा की बेस के ऊपर इशू होने वाला इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, whereas not every other structure can be traded in the capital market. So इसके ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है, but and that's a very important point. Thanks for highlighting. थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इससे पहले, इफ देयर इज एनी फर्दर क्वेश्चन, उबैद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चेक करता हूँ इफ आई कैन हैव यू, या गो अहेड सर। नाम उबैदुल्ला। अच्छा सर, मेरे को एक सही से सवाल ये एतबार से कि शरीयत में तो ये होता है कि जब दो बंदे खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो अपनी रजामंदी से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर मैं खरीदना चाहूँ, ये स्टॉक खरीदना चाहूँ, तो कम से कम ये ज़रूरी होता है कि मैं किसी ब्रोकर से रब्ता करूँ, या फिर ये कि मैं खुद अपना अकाउंट खुलवाऊँ और फिर डिपॉजिट रखवाऊँ। तो दरमियान में थर्ड पार्टी जो होती है जिम्मेदार बनती है इस बात की कि भाई अगर पैसे नहीं दिए तो ये देगा वो देगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये क्यों ज़रूरी होता है शरीयत एतबार से? तो शरीयत एतबार से नुक्ता नज़र क्या है इसके हवाले से? जी बिल्कुल इंतजामी सही। जी उबैद भाई, आपकी आवाज कुछ थोड़ी सी उसमें डिस्टॉर्शन थी, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया कि इन इंटरमीडियरीज की जरूरत क्यों है। जब आपके पैसे हैं और आप एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो फिर ये क्यों जरूरी है कि आप किसी ब्रोकर से राब्ता करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकें। आप खुद से क्यों नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है यही आप जानना चाह रहे थे। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप मुख्तलिफ बैंकों से राब्ता करते हैं फॉर दी फॉर दी कैपिटल रेजिंग और द लोन, और आप स्टेट बैंक से नहीं करते। कैपिटल मार्केट के अंदर ना एक्चुअली आपको एक मार्केट प्लेस फराहम की गई जहाँ पे लाइसेंस्ड एंटिटीज जो हैं वो ऑपरेट करती हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि देखिए, इट इज इजी टू regulate and implement discipline to 200 regulated entities, and then in turn वो सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को। और इस तरह ये भी होता है कि एक इंटरमीडियरी की मौजूदगी में आपके तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बिल्कुल अच्छे से अंजाम पाती हैं। अदरवाइज आप ये सोचिए ना कि स्टॉक एक्सचेंज देन हैज टू डील विद like millions of investors, which is practically not possible, and not actually not practical. So these are the licensed entities जो ये सर्विसेज मुहैया करती हैं। अब चूंकि आपका इशारा इस तरफ भी हो सकता है कि क्या ये सेफ है, कोई और रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उसके लिए देखिए, जैसे इकोसिस्टम की हमने बात करी थी, सीडीसी में आपके शेयर्स बिल्कुल महफूज आपके सब अकाउंट में होते हैं। नेशनल क्लीयरिंग तमाम ट्रेड्स की गारंटी कर रहा होता है। अगर कोई फेलियर होता भी है तो नेशनल क्लीयरिंग जो है वो डिफॉल्ट प्रोसेस के थ्रू दे कैन मेक गुड। तो ये है सर सिलसिला उबैद भाई। जी जी समझ। लेकिन असल में इस हवाले से मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें ना कि अगर हम स्टॉक मार्केट को इस्लामिक फाइनेंस की तरफ मूव करेंगे, तो इस्लामिक फाइनेंस में एक मकसद ये भी होता है कि भाई कोई अगर हम ट्रेड करें तो उससे एक फ़ायदा हासिल हो। ये नहीं कि जैसे स्टॉक मार्केट में एक शेयर खरीदा मैंने, वैल्यू ऊपर गई तो मैंने पैसे यानी महंगा हुआ तो मैंने बेच दिया, सस्ता हुआ तो मेरा नुकसान हो गया। तो इससे माशरे में क्या फ़ायदा हासिल होता है? इस्लामिक फाइनेंस में तो ये तो देखा जाता है कि भाई माशरे को फ़ायदा पहुँचे।
वरना स्पेकुलेशन, गरर, सूद वगैरह वगैरह, ये सारा तो फिर शरीयत में नाजायज है ना, क्योंकि मकसद शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं ना। तो ये जो शेयर खरीदे जाते हैं, यानी गेन 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 हासिल करने के लिए, कीमत महंगी हुई तो हम ले लेंगे, और कीमत महंगी हुई तो फायदा हो जाएगा हमें। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर ये इस तरफ जाना चाह रहा था मैं इस सवाल से। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस्लामिक फाइनेंस में इसको देखा जाए? जी उमैद भाई, मैं इस पे जाहिर है कोई हतमी राय तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई शरिया स्कॉलर तो हूँ नहीं, ना ही बल्कि बहुत ही कम अकुल सा, कम फहम सा तालिब इल्म हूँ। देखिए, ये है कि आपका मकसद क्या है इन्वेस्ट करने का। अगर आप इसको बिल्कुल मनोवन देखें, एक कारोबार मिसाल के तौर पे मुझे यूं लगता है कि गाड़ियों के कारोबार जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, तो लिहाजा मुझे किसी गाड़ियों की कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए आपके पास, आप जाके स्टॉक मार्केट में देखेंगे कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो मोटर कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हैं। आप उसके अंदर खरीदारी करते हैं तो आप एक तरह से उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपका सवाल कि फायदा क्या होगा, जाहिर है ये इन्वेस्टमेंट जो है ये सपोर्ट करेगी उस बिजनेस को पनपने में, फलने फूलने में, एक्सपैंड होने में, और उसके बाद जो उसका मुनाफा है वो वापस आप तक पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो इसका मतलब है कि जितना मुनाफा कमाया गया वो दोबारा बिजनेस ही में इन्वेस्ट हुआ, तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ का सबब हुआ। इस ग्रोथ की वजह से उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप देखिए, जरूरत भी पेश आ सकती है, आप का डिसीजन भी हो सकता है कि बस मुझे आई एम फाइन नाउ, आई फील कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, जिस सेक्टर में करी थी, जिस इंडस्ट्री में की थी, it is now reached a certain point where I don't see any further growth in this business. So you can always switch to another business. So that's how it depends on your नीयत, आपकी ऑब्जेक्टिव, आपकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इंटेंशन, देखिए साहब, अब मैं क्या कहूँ, ये तो अच्छी खासी बज़ाहिर की भी नेकी भी अल्लाह के यहाँ जो है ना वो सवालिया निशान उस पे आ जाता है अगर आपकी नीयत कुछ और थी। तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए हमें ऐसे किसी भी गुनाह से, कि आपकी नीयत ये है कि आपने कारोबार में इन्वेस्ट करना है, कारोबार के बढ़ने में हेल्प करनी है, और उसके बाद जो मुनाफा होता है उसमें जो आपका जायज हिस्सा है वो आपको मिलना चाहिए। तो ये मेरे नज़दीक तो सरीहन एक शरिया, मतलब एक शरी शरी तरीका है किसी भी कारोबार में हिस्सा लेने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, मैं थोड़ा सा आपको उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त इस सेशन का हिस्सा है, कि हमने ये ग्रिड है हमारे पास कि आपको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इट्स ऑलवेज, आई मीन it's never too late. I mean, the sooner you start, the better it is. So उसमें जाहिर है मुख्तलिफ एसेट क्लासेस मौजूद होती हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मैट्रिक्स है जिसमें कि आप अपनी एज और स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप इसको एक नज़र देखिए। जब ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर होगी तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए मुफीद होगी। आप पीएसएक्स की वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, www.psx.com.pk। इससे मार्केट समरी में आपको सारी स्नैपशॉट मिल जाती है कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, कौन से शेयर्स ऊपर हैं, कौन से ऊपर नहीं हैं। तमाम हाइलाइट्स जो हैं वो आपको इसके सामने, मतलब ऑन दिस पेज you get a clear view of that. We call it the data portal. Data portal services में आप देखें मार्केट समरी से लेके और डेली कोटेशन एंड कंपनी अनाउंसमेंट, एनी अनाउंसमेंट अ कंपनी मेक्स, कोई कंपनी नफा करती है, नुकसान करती है, बोर्ड की मीटिंग बुलाती है, कुछ मैटर्स को डिस्कशन करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली लैंड होती है at PSX website. So please do visit PSX website to know more and more about the capital market of your country. Um,
Yeah. So that's on this link you have the list of brokers available. जो कि मैं बता रहा था, over 190 licensed brokers. You can reach out to any of those. Ask for the Sharia compliant opportunities available in the capital market and start from there. We have another PSX My Portfolio also, who can, where you can do a demo account. You can open a demo account and start trading, and then see how you are making decisions and how you are performing in that portfolio. ठीक है जी. इसी तरह से there are other various options available. So I'm just taking you through the some of the informative pages on the PSX website, and I would urge you to please visit them. और मेरी आपसे आखिर में यही गुजारिश होगी कि ये एक तवील सफर है, एक बहुत बड़ा मकसद है, और ये उसका सिर्फ आगाज है. इसमें हमें आपकी रहनुमाई चाहिए होगी. आप प्लीज हमारे साथ एंगेज कीजिए. कोई भी सवाल हो, जी कोई मैम. भी मशवरा हो, तो आप प्लीज हमारे एड्रेसेस के जी. ऊपर हमसे राब्ता कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. ओवर टू यू मिस्टर रुबाब. जी जी. I hope we managed the time. So do we have further more questions? I think not for now, but as I offered, please do write in on our address, and we'll try to get back to you as soon as possible. So over to you again, Mr. Baum. I'm really very thankful to you, and I extend my sincere gratitude to you Thank for sharing your expertise with us today. And a really big thank you to all of you for joining in this very engaging session. I hope this discussion is really very insightful, and it has given you valuable insights into the Islamic capital market and obviously in the future opportunities in it. For further discussion on networking, please feel free to connect with us and stay engaged with our page. We look forward to hosting you in our future sessions. Until then, Jazakallah khair, stay safe, and walaikum assalam. Thank you very much. It's been an absolute pleasure to be part of this session, and look forward to further engagement, inshallah, going forward. Thank you very much, everybody. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam.